Morning, kids. In today's class, we are going to discuss about the current LCT chapter, J Mains 2024 PYQ. This is the one of the very important chapter. So earlier in the olden pattern, so they used to ask like out of 32 questions. Now the pattern has changed. 25 questions has come. So we can expect only one question from this chapter. And it's a lengthy chapter and manageable, easy. Some very difficult questions are there, also very easy topics are there, very difficult. And the JEE means he has preferred more to ask from the easy topics. So what all the, we'll just explore 2025 PYQ, especially the January shift it is. You'll get exact idea how to manage this particular JEE mains like a current test city. We'll start with the first question. The current in a conductor is expressed 3t square plus 4t cube. The amount of electric charge that flows through a section of conductor. So ये तो क्वेश्चन है बेसिक चार्ज के बारे में. So how we define I equal to dq by dt. So इसको dq हम ऐसे high dt. And there's one basic definition. So what is the definition क्या है current का? Rate of current means rate of flow of charge. Any quantity that varies with the time उसको हम rate of flow बोलते हैं. तो इसका हम इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे करंट का 3t square 4t cube dt. This is dq. So 1 to 2 seconds कितना चार्ज फ्लो हो चुका है. Okay, this should be equal to q equal to 3t cube by 3. So t cube plus t to power of 4 1 2. इसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जैसे ये तो 2 क्यूब हुआ माइनस 1 क्यूब 2 to power of 4 minus 1 to the power of 4. So ये हुआ 8 minus और 16 minus 1. 16 plus 8 24 minus 2. So total हुआ 22. तो 22 coulombs of charge वो एक कंडक्टर से फ्लो होता है. सो व्हाट इज द बेसिक डायग्राम. द डायग्राम यहाँ पे आपको करंट फ्लो हो रहा है. इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो चुका है, टोटल चार्ज. सो 22 coulombs इज व्हाट. यहाँ पे टोटल चार्ज कितना फ्लो हो चुका है, 22 coulombs. ये तो सिंपल डेफिनेशन हुआ. फिर लाइक यहाँ पे सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन मेंस इज इंपॉर्टेंट. तो बहुत सारे बच्चे like I had one comment like sir please discuss some important questions. But you आप एक बार देखिए PYQ JEE Mains का हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सिंपल डेफिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन. बट सम majority of topics is being asked again and again. So like that is ammeter, voltmeter, galvanometer, ammeter, voltmeter, Wheatstone network, bulbs, series parallel. ये तो ये topics है like most repeated. I'll write it. Current topic जो है ammeter, voltmeter, galvanometer, bulbs, series parallel और बेसिक सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो इन टॉपिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अब तक पूछ चुके हैं. और व्हीटस्टोन नेटवर्क भी एक था. तो यू हैव टू रियली स्ट्रेस. सो यहाँ पे आप गैलोमीटर कन्वर्शन टू एमीटर, गैलोमीटर कन्वर्शन टू वोल्टमीटर, गैलोमीटर रेजिस्टेंस, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड. ओके फाइन. बल्ब सीरीज पैरेलल में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का आइडिया यहाँ पे है.
Just small formulas. Don't go for very high, tough, like a big networks. Simple series parallel or Western network. There's a threshold area, what we call threshold area. कंपल्सरी ये सब आपको चैप्टर पढ़ना है. दिस आर लाइक ए हाई प्रियोरिटी थ्रेशोल्ड एरिया. बाद में इसके बाद में यू कैन गो फॉर ओम्स लॉ. देन नेक्स्ट इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूलास, रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क. दिस आल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली सिंपल केसेस. इसके बाद में सो यू कैन नेक्स्ट थिंग इज लाइक ए you can take the Western network को और temperature resistance varies with the temperature. So these are some topics are there which you can use. So there's the high priority, low priority. So the safest thing is जो भी चैप्टर है सब पहले theory पढ़ लो, फिनिश. प्रॉब्लम प्रैक्टिस इसमें ज्यादा कर लो, इसमें कम कर लो. दिस इज द वन स्ट्रेटेजी है. अगर इसमें से थोड़े कुछ क्वेश्चंस आ गए तो भी यूजिंग फॉर्मूला यू शुड नो हाउ टू मैनेज. यहाँ पे थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला याद करो और थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो. यहाँ पे थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो और यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करे तो भी ओके फाइन, यू कैन मैनेज इन एग्जाम. दिस इज वन स्ट्रेटेजी फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी. आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. A galvanometer has a resistance of 50 ohm and it allows maximum current of 5 milliampere. It can be converted into voltmeter. How much of series resistance has to be connected? So या तो आप हम एक गैलोमीटर ले लेंगे, बाद में एक सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. इसका गैलोमीटर रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम और इसका मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पियर. तो हम जो ड्रॉप अप्लाई कर रहे हैं इट विल ड्रॉप अक्रॉस V1 और बाकी बचे सो हम जो ड्रॉप अप्लाई कर रहे हैं वो विल बी अक्रॉस गैलोमीटर. राइट, KVL प्लस V मैक्स. यहाँ से हम जा रहे हैं. If you move from negative to positive terminal, rise in EMF plus Vmax, then IG into RS. यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है सो इट विल बी IG. तो करंट विल एंटर पॉजिटिव वेयर इट लीव्स नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. So then you are moving from negative to positive terminal. इसका तो rise in EMF हुआ plus Vmax. तुम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हो, फॉल इन EMF, फॉल इन IR ड्रॉप. तो फॉल इन IR ड्रॉप कितना हुआ? माइनस IG इंटू RS. देन अगेन यहां से हम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं अक्रॉस द गैलोमीटर, फॉल इन ड्रॉप. सो इसका हुआ ना माइनस IG इंटू G. और एक सवाल पूछ सकते हैं आप, लाइक सर इसका पोलैरिटी कैसे दे रहे हैं आप? जहां पे करंट एंटर होता है सो दैट एंड शुड बी पॉजिटिव. जहां पे करंट लीव हो रहा है और बाहर आ रहा है सो दैट एंड विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है सो दिस एंड विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है सो देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव टर्मिनल. ओके फाइन. यहाँ पे हम एक EMF अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग सम वोल्टेज. तो इसका वैल्यू लगा देंगे. सो IG कितना? 5 IG कॉमन. सो RS वैल्यू पूछ रहे हैं ना. ओके फाइन. Vmax कितना हुआ? 100. IG का वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 RS, 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 3 गैलोमीटर रेजिस्टेंस 50.
यहाँ पे हम आर एस को सॉल्व करेंगे. 100 5 इंटू 10⁻³ आर एस प्लस 50. यहाँ से हमें 5 1 जा 520. सो 20 इंटू 10⁻³ आर एस प्लस 50. आर एस कितना हुआ ये तो 20,000. 20,000 में हम 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 19,950. मैक्सिमम चांसेस गोइंग रॉन्ग. कैलकुलेशंस गोइंग रॉन्ग. ये तो हुआ तुम्हारा टोटल कॉन्सेप्ट है. वोल्ट मीटर, कन्वर्शन ऑफ गैलमीटर टू वोल्ट मीटर. कुछ भी नहीं यार, जस्ट अप्लाई केवीएल. वी मैक्स इक्वल टू आई जी इंटू आर एस. देन देन आई जी इंटू जी. देन अगर अगर आपको आर एस पता है तो वी मैक्स वी कैन फाइंड आउट. अगर वी मैक्स पता है तो देन यू कैन फाइंड आउट आर एस. दिस व्हाट कन्वर्शन ऑफ गैलमीटर टू वोल्ट मीटर. Now, what is this galvanometer? It can read any range 0 to 100 ohm. अगर आप galvanometer को एक RS resistance in series रख दिए तो then the same galvanometer now will read any voltage from 0 to 100. So range कहाँ से हम we have increased it. Galvanometer का range कितना है? Galvanometer का range कितना हुआ? 50 into 5 into 10⁻³ तो इसका रेंज हुआ 250 मिली एम्पियर. मीन्स कितना करंट मेजर कर सकता है गैलोमीटर, अकेला गैलोमीटर? 0 to 250. अगर आप एक सीरीज रेजिस्टेंस रखे तो, अगर एक रेजिस्टेंस आप सीरीज में गैलोमीटर को जॉइन करें तो इसका करंट मेजरिंग कैपेसिटी, इसका इसका वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी कितना 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 हो जाता है? 0 to 100. इट्स लाइक ए वोल्ट मीटर. यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ. 250 मिली वोल्ट. तो ये वो गैलोमीटर का वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट. एनी वोल्टेज 0 to 250 ये मेजर कर सकता है. इससे ज्यादा अगर आप अप्लाई किए तो अक्रॉस गैलोमीटर द गैलोमीटर विल बर्न आउट और विल गेट डैमेज. अगर आप एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे देन उसका वोल्टेज रेंज बढ़ जाएगा. तो अगर आप 19,950 ओम अगर आप इन सीरीज रखे तो इसका वोल्टेज रेंज नाउ विल बिकम 0 to 100. So we are not changing anything to galvanometer, only some resistor connected in series. So this particular formula, ये जो formula है आपको याद रखना पड़ेगा. This is very important. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. ये थोड़ा रीडिंग इन आइडियल वोल्टमीटर. इसका वोल्टमीटर का रीडिंग पूछ रहे हैं. यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सेल्स हैं एंड ऑल द सेल्स. एक बार सेल्स चेक कर लो. हर एक का सेल इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 है और 5 वोल्ट ईएमएफ है. देन सभी सेल्स चेक कर लो. ऑल दे आर आइडेंटिकल. देन ये भी, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 5 वोल्ट ईएमएफ है. इसका भी 0.2 ओम 5 वोल्ट ईएमएफ है. ये सभी सारे सेल्स 60 सेल्स है. 6 3 1 या 3 60. ये सभी 7 सेल्स ऑल दे आर इन सीरीज. उसके बाद में यहाँ पे और एक सेल है. इसका वोल्टेज कितना है? ईएमएफ कितना है? 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2. यहाँ पे वोल्टमीटर का रीडिंग पूछ रहे हैं. सो कैसा देन फाइंड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कॉन्सेप्ट चला अप्लाई. नो, रियली आप एक बार वोल्टमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि आइडियल वोल्टमीटर. आइडियल मीन्स इसका कुछ भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं. फाइन. देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर? सो यहाँ पे कितना ड्रॉप है? दिस ड्रॉप इज व्हाट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर. वी राइट ए बी. देन ओके सर, लाइक ए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स मीन्स ए इसका इक्वलेंट सेल रिप्लेस करता हूं, बाद में इसका इक्वलेंट सेल रिप्लेस करता हूं. द आंसर इज नो, बिकॉज
यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, सो दिस विल बी फ्लोइंग लाइक दिस, सेम करंट विल फ्लो। एक कंप्लीट लूप में करंट जो फ्लो है वो सेम रहता है। सर लगे यहाँ पे क्यों ब्रांच नहीं हो रहा है? वाई देयर इज नो करंट इज नॉट ब्रांचिंग हियर? इसका रीजन क्या है बोले तो, दिस वोल्टमीटर इज आइडियल। आइडियल मीन्स इसको आप ओपन सर्क्यूट चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे करंट विल बी जीरो, नो करंट। फिनिश, हाँ। यहाँ पे आप, देयर इज नो करंट हियर। देन सो सिंपल केवीएल यहाँ पे आप, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सिंपल केवीएल। पहले ये 7 सेल को हम रिप्लेस करेंगे। इसका ईएमएफ कितना हुआ? 0.2, ये 5 वोल्ट। ओके, दोनों का सेल्स, डोंट गो फॉर पैरेलल। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी करंट है वो करंट इस लूप में ही फ्लो हो रहा है। द रीजन, वोल्टमीटर इज आइडियल मीन्स ओपन सर्क्यूट। यहाँ पे कुछ करंट नहीं फ्लो होता है, फ्लो नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज द करंट? आई इज इक्वल टू, लूप इक्वेशन रख दो, +5। ओके सर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दो, एंड प्लस माइनस पोलैरिटी वो भी दे दो। देन लूप इक्वेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव हो रहा हूँ। सो राइज इन ईएमएफ +5 वोल्ट। इसके बाद में देन माइनस 0.2 I +5 माइनस 100/24। 100/24 विल बी 25 यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ओके देन बाद में इसका हम पोटेंशियल ड्रॉप ले लेंगे, VB माइनस 0.2, यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस 0.2 I +5 माइनस VA 0। VBA इज इक्वल टू 0.2 I +5। आई का वैल्यू कितना है? 25। 25 × 2 = 50, 5 5 10 वोल्ट। टोटल कितना हुआ है? दिस इज रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। यहाँ पे लिख दो वोल्ट मीटर रीडिंग। ओके नाउ कितना 1 है ना? एक बार चेक कर लेता हूँ। दिस विल बी 8। ए बी +5। इसका इक्वलेंट यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गलत हुआ। 7 1 2 3 4 कितना 7 सेल है ना? यहाँ पे भी 7 हुआ। सो बल कुल मिला के कितना, ये थोड़ा कैलकुलेशन रॉन्ग है यहाँ पे। 18 to, okay, this will be 18 to 5, also this will be 18 to 5।
8 into 0.2 I. तो I का वैल्यू कितना हुआ? 5 by 0.2, 50 by 2, 25 एम्पियर। ट्वेंटी फाइव एम्पियर हुआ, तो यहाँ पे लगा देंगे 25 एम्पियर वी ए बी। 0.2 into 25, 25 into 2 will be 55, 5 by 10 volt. Okay, fine. हाँ? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, इसका रीडिंग कितना है नो? विल बी मोर देन 5 वोल्ट है। ये तो मोर देन 5 वोल्ट। की करेक्शन। सर, व्हाट डू मीन बाय आइडियल वोल्टमीटर? आइडियल वोल्टमीटर मीन्स उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट internal resistance. Okay, fine. So this is the meaning of ideal voltmeter. अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Next question is, in ammeter 5% of the main current passes to the galvanometer. If the resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter. तो ये जो एमीटर कैसे बनता है? तो पहले इसका गैल्वोमीटर है, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस शंट बोलते हैं इसको, तो वी आर कनेक्टिंग इट इन पैरेलल। तो ये जो करंट हाईएम फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट आई जी फ्लो होता है, और बाकी बचे सो करंट आई माइनस आई जी यहाँ पे फ्लो होता है। दिस इज अ गैल्वोमीटर। ओके फाइन, सो ये हुआ गैल्वोमीटर। हाँ सर, व्हाट इज दिस करंट? ये जो करंट हम मेजर करते हैं, सो ये यहाँ पे फ्लो हो रहा है। So current will branch galvanometer current and I minus Ig current passing through the shunt. बाकी बचे, so the total current I will come from here. Then in ammeter 5% of main current passes through the galvanometer. 5% of main current means Ig का वैल्यू कितना है now? 5%, 5% of main branch current, 5 by 100 into I. So ये हुआ 0.05 I, Ig का वैल्यू। तो नो अब इसके बारे में पूछ रहे हैं। सो व्हाट इज द शंट वैल्यू? तो ये जो ड्रॉप है नो, दे आर पैरेलल। द ड्रॉप अक्रॉस गैल्वोमीटर शुड बी इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस द शंट बिकॉज दे आर पैरेलल। यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे, आई जी इंटू जी शुड बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। यहाँ पे हम आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई वैल्यू विल बी आई जी बाय 0.05। यहाँ से आई जी कैंसल हो जाता है, देन दे विल गेट दिस G is equal to 100 by 5 minus 1 into shunt value, 20 minus 1, तो shunt का वैल्यू हुआ now G is equal to 20 minus 1 will be 19, shunt का वैल्यू हुआ G by 19. Approximately we can go for G by 20. It's approximated. Nearest value we are picking up. Okay, कुछ लगे
या इन एग्जाम्स इट हैपेंस, नियरेस्ट वैल्यू इज व्हाट हम ले लेते हैं। अगर ऑप्शंस मैच नहीं हो तो यू हैव टू पिक अप फॉर नियरेस्ट वैल्यूज। अगेन अगेन गैलोमीटर, कन्वर्शन ऑफ गैलोमीटर टू एमीटर। अगर आपको गैलोमीटर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक लो वैल्यू ऑफ शेंट, शेंट लो रेजिस्टेंस, सी वन, ये दो ऑप्शंस रूल्ड आउट नो, बिकॉज एमीटर का व्हाट इज द बेसिक आइडिया, द शेंट should value of shunt should be less than gallonmeter, so these two are ruled out. No, बाकी बचे सो ये दो ही ऑप्शन है। ये इसे आप आपका ऑप्शन चेक कर सकते हो। सिंपल आइडिया, वंस अगेन आई रिपीट, ये जो आप गैलोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए तो आपको लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल गैलोमीटर कनेक्ट करे तो देन दिस होल सेटअप will become ammeter, and this is the current which आप जो मेजर कर रहे हैं, गैलोमीटर करंट फ्लो होता है, तो देन दिस विल बी आई माइनस आई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नो, दिस इज थोड़ा ये Wheatstone network and semiconductors के बारे में थोड़ा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। To measure the temperature quotient of resistor alpha of semiconductor in electrical element shown in the figure is prepared. The arm BC is made up of the semiconductor. यहाँ पे हमें एक semiconductor है, fine. To confuse you, not given, but यहाँ पे एक semiconductor हम connect कर चुके हैं। The experiment is conducted at 25 degrees and the resistance of semiconductor arm is 3 ohm. Arm BC is cooled at a constant rate. If the galvanometer G shows no deflection after 10 seconds, then alpha. इसका अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट्स बी द फॉर्मूला? अगर आप ये ले लिए तो ओके, नो, व्हीटस्टोन नेटवर्क कंडीशंस अप्लाई करेंगे। रेशियो ऑफ द आर्म्स आर ए बी बाय आर बी सी, इसका रेशियो आर ए डी बाय आर डी सी। दिस इज वन बेसिक आइडिया व्हीटस्टोन नेटवर्क का। द रेशियो ऑफ दिस टू आर्म्स RAB by RBC should be equal to RAD by RCD और RDC। देन RAB का कितना 0.8 10 to power of 3। RBC का वैल्यू पता नहीं, सो वही 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 तो हम कैलकुलेट करेंगे। RBC RAD 1 मिलियन, RDC 3 into 10 to power of -3। 0.8 into 3 into 10 to power of -3, so 2.4 into 10 to power of -3। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना रहे तो करंट तो गैलोमीटर भी 0, इट शुड बी 2.4 ओम। इसके लिए इसका इसका रेजिस्टेंस कितना है ये ब्रांच का, है सेमीकंडक्टर का 3 मिली ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस, is cooled at a constant rate 2 degree per 2 degree Celsius per second. If the galvanometer shows no deflection after 10 seconds, means इसका like कितना टेम्परेचर इनिशियली 25 डिग्री, 10 सेकेंड में इट इज कूलिंग फॉर एवरी 1 सेकेंड 2 डिग्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है, कम हो रहा है। तो देन हाउ मच इट शुड बी आफ्टर 10 सेकेंड्स? ये तो 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ नो, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर इनिशियल वैल्यू आर नॉट अल्फा डेल्टा थीटा रख दो। तो यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस कितने चाहिए हमें, 3 मिली ओम पहले था, अब कितना ए ए ए चाहिए 2.4, सो द डिफरेंस कितना हुआ 0.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3। ये तो आर नॉट वैल्यू है इनिशियली, 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 एंड ए अल्फा। टेम्परेचर कितना कम हो रहा है इन 10 सेकेंड्स, फॉर एवरी 10 सेकेंड, फॉर एवरी 1 सेकेंड 2 डिग्री सेल्सियस, इन 10 सेकेंड्स में 20 डिग्रीज।
इसका अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो 0.63 इंटू 20, ये हुआ 1 इंटू 10⁻², डिग्री सेल्सियस। ओके सर, यहाँ पे नेगेटिव साइन है बिकॉज वी आर डिक्रीजिंग द डेल्टा आर विल बी नेगेटिव, यहाँ पे रख दो बस, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर मीन्स अगर आप be schooled at a constant if the calorimeter shows no deflection after 10 seconds, then alpha will be. And there's one basic idea. So यहाँ पे Wheatstone network idea, Wheatstone network, then temperature, variation of resistance with temperature, दोनों आइडिया यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम. We take the next question. In a meter bridge, when a resistance in left gap is 2 ohm and unknown resistance in the right gap, the balance length is found to be 40. On shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes by. बेसिक व्हीटस्टोन नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ड्रॉइंग, बट इन एग्जाम में ये डायग्राम आपको शुड बी देयर विद इन योर इमेजिनेशन. दिस इज लेफ्ट गैप इज 2 ओम. यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम. अननोन रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है. फाइन. द बैलेंस लेंथ फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर, बाकी बचे तो कितना? 60 सेंटीमीटर, बिकॉज मीटर ब्रिज द नाम में ये टोटल लेंथ कितना है? मीटर ब्रिज, द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इन मीटर ब्रिज विल बी 1 मीटर ब्रिज. तो 40 सेंटीमीटर, बाकी बचे तो वायर का लेंथ कितना है? 60 सेंटीमीटर. नो, ये वायर का यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस रहता है. नो, यहाँ पे on shunting the unknown resistance with 2 ohm, the balance length changes by with 2 ohm. Okay, अगला सर्क्यूट. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लाइक वी आर पहले एक्स था, एक्स है, नो एक अननोन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं. फाइन. सो इसका नाम थोड़ा से होने टाइम लग रहा है. Then again same Wheatstone network idea. The ratio of this by this arm should be equal to ratio of this by this. So 2 by x should be equal to lambda into 40 by lambda into 60. So 2 by x should be equal to, this will be 2 by 3. So x equal to 3 ohm. The balance length changes. The new balance length यहाँ पे हम find out करेंगे. So this will be 100 minus n. तो x का वैल्यू कितना है? 3 ohm. No. So now again the current through galvanometer is 0. So 2 by 2 plus x should be equal to L by 100 minus L. यहाँ पे हम L का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो 2 by 2 plus 3 L by 100 minus L. तो इसका नेक्स्ट वैल्यू कितना हुआ? 2 by 5 इक्वल टू
L 100 minus L. 200 minus 2L equal to 5L. 200 equal to 7L. L का value 200 by 7. 200 by 7 will be 200 divided by 7. 28.5 ले लेंगे. पहले कितना था बैलेंस लेंथ? 40 सेंटीमीटर. अब बैलेंस लेंथ कितना हुआ? 28.5 सेंटीमीटर. चेंज कितना है? 8.5 सेंटीमीटर. On shunting in the left, when erections and unwashed, the balance length is found to be 40 centimeter. 12.5. Yeah. Balancing length will become 12.5. एक बार चेक कर लेता हूं मैं थोड़ा कैलकुलेशंस मेरा. ओहो, यहाँ पे सीरीज नो, आई थॉट सीरीज कनेक्टेड कितना ऑन शंटिंग का. शंटिंग बोले तो देन वी हैव टू टेक पैरेलल. ये हुआ 2x by 2 plus x. यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशंस. This will be 200. Shunting, मैं थोड़ा सीरीज लिया था. ओके, दिस शंटिंग नो कनेक्टेड पैरेलल. नो हम ऐसे सॉल्व करेंगे. वो सो दिस विल बी 2 by x. दैट कैलकुलेट करेंगे. 200 minus 2l 100x minus xl equal to xl. x का वैल्यू कितना है? 3 है. पहले x का वैल्यू पता है ना, वो रख देंगे. 2 plus 3 by 3 equal to L 100 minus L. ये तो कैलकुलेशंस थोड़े इजी हुआ ना. नो, 500 minus 5L equal to 3L. L का वैल्यू, okay, this will be 500 equal to 8L. L equal to 500 by 8. 500 by 8 कितना हुआ? 250 by 4. 250 by 4 divided by 4. 62.5. पहले बिफोर शेंटिंग इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना था? 40. अब कितना बैलेंसिंग लेंथ है? 62. सो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? 22.5 सेंटीमीटर. शेंटिंग मींस कनेक्टेड पैरेलल, नॉट सीरीज. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. अगेन ये मीटर ब्रिज का है. A wire of length 10th and radius connected across the right gap of meter bridge. When a resistance of 4 is connected to left gap by using resistance, the balance found to be 8. The ratio of the wire, then the value of R. Directly, अगर आपको मीटर ब्रिज का फॉर्मूला याद रहे तो you should directly take the meter bridge formula. अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो then construct meter bridge. And these are the choices what you are having.
कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ मीटर ब्रिज. नो, ये तो बैलेंसिंग लेंथ है. ये तो लेंथ ऑफ द वायर. Right gap of meter bridge. A wire of length 10 radius connected across the right gap of a meter bridge. यहाँ पे हम एक वायर कनेक्ट कर चुके हैं. When resistance is connected to the left gap. यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 4.5 ओम. The balance is found to be at 60 सेंटीमीटर. बाकी बचे सो कितना? 40 सेंटीमीटर. इसका रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं. रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर. इसका आर वैल्यू पूछ रहे हैं. सम अदर वैल्यू ले लेंगे. ए, इसका बी. वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर रेडियस. पहले इसका वैल्यू ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे. सो ए बाई बी शुड बी इक्वल टू 60/40. ए का वैल्यू 4.5, बी 6/4, ए तो हुआ 3/2. 4.5 को भी आप 9/2 कर सकते हैं. तो बी का वैल्यू कितना हुआ? 3 ओम. तो दिस 3 ओम इक्वल टू आर रो लेंथ एल एरिया बाई एक्स स्क्वायर. ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है? एल, और इसका रेडियस है एक्स. तो यहाँ पे हमें रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, और हमें रेजिस्टेंस पता है. रेजिस्टिविटी. टू कंफ्यूज यू, यूजुअली हम रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या लेते हैं? हम विल टेक इट रो, बट यहाँ पे इंटेंशनली आर. तो दिस वन बेसिकली रो एल बाई. तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नो इसको रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं. दिस कैपिटल आर को रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं. सिंबल टू सिंबल इज कंफ्यूजिंग, दैट्स ऑल. Okay, solve this, we'll get the value. ये तो सिंपल Wheatstone, like based on Wheatstone network. Again, meter bridge works on Wheatstone network. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. A wire of resistance R and length L is cut into 5 equal parts. If these parts are joined parallel, then the resistance of each part. So हमें यहाँ पे एक वायर है. It is cut into 5 equal parts, and all those parts are connected in parallel. The resultant resistance will be, they are connected in parallel. Then if you, this is having resistance R, L. So how much this will become? Length will become L by 5. इसका resistance कितना हुआ? R by 5, R by 5, R by 5, R by 5, R by 5. Then resultant resistance will be 1 by R dash should be equal to 1 by R by 5, 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 1 by R by 5. So this will become 5 by R by 5. Okay, this is effective resistance. Okay, agreed? वेरी सिंपल सीरीज पैरेलल का अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहे तो देन यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. अगेन सेम Wheatstone network, simple ideas. Wheatstone bridge principle is to measure the specific resistance of given wire having length L. Radius R. If X is the resistance of wire, then specific resistance is, the length of wire gets double, then the value of specific resistance will be. Specific resistance
द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. एक काम करेंगे. व्हाट इज एक्स इज द रेजिस्टेंस. So specific resistance L by pi r square. So हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे. ये वायर का लेंथ है L एंड इसका रेडियस है 2r. 2a रख देंगे. रेडियस है r. अगर यहाँ पे आप लेंथ को चेंज करें तो द रेजिस्टेंस विल चेंज. अगर रेडियस चेंज करें तो द रेजिस्टेंस विल चेंज. द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल. तो इसका रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है? S1. अगर इसको आप दो हिस्से में बांट दे दो, यू ब्रेकअप, इसको हम यहाँ पे दो हिस्से में कर देंगे, 2 3, आपके मर्जी. जस्ट चेंज डायमेंशन. इसको यहाँ पे हम डायमेंशन चेंज करने पर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, बल्कि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, X1 X2. So I agreed. Specific resistance is a constant for a given material and will be different for different material, where the resistance depends upon the dimensions. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. A current of 200 microampere deflects the coil of moving coil galvanometer 60 degrees. The current to cause deflection through pi by 10. pi का वैल्यू कितना है? 180. So pi 180 रेडियन. So pi by 10 radian. The current to cause deflection through pi by 10. So now little bit यहाँ पे आपको डिग्री या रेडियन है, to change it. No. एक काम करेंगे. So 200 माइक्रो एम्पियर अब जब करंट फ्लो हो रहा है, कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन? पाई बाई थ्री होगा. नेक्स्ट इसको आप द करंट टू कॉज डिफ्लेक्शन थ्रू पाई बाई 10. पाई बाई 10 रेडियन के लिए कितना करंट चाहिए? डिवाइड कर दो. I by 200 into 10 to power of -6 equal to pi by 10 pi by 3. यहाँ पे एक जीरो हुआ, so लगे 6 into 10 to power of -1 और 60 माइक्रो एम्पियर. अगर 60 माइक्रो एम्पियर अगर आप करंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेंगे तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा? पाई बाई 10. अगर आप 200 माइक्रो एम्पियर फ्लो करे बोलते इसका डिफ्लेक्शन होगा पाई बाई 3. देखिए सिंपल स्केल है. जीरो. सो पाई बाई 10 तो कम हुआ ना. सो जब करंट फ्लो हो रहा है माई गैल्वेनोमीटर, ऑल दिस नॉट नीडेड, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये डिफ्लेक्शन हुआ पाई बाई 10, ये डिफ्लेक्शन हुआ पाई बाई 3. अगर आप जब करंट तो गैल्वेनोमीटर फ्लोइंग इस 60 माइक्रो एम्पियर, पॉइंटर यहाँ पे पाई बाई 10 पे रहता है डिफ्लेक्शन. अगर आप करंट तो गैल्वेनोमीटर इंक्रीज करके इसको 200 माइक्रो एम्पियर बनाए तो द पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट थ्रू हाउ मच ऑफ एंगल? इसका एंगल अप नाउ पाई बाई 3 रहेगा. द डिफ्लेक्शन विल बी पाई बाई 3. आई थिंक ये तो सिंपल आइडिया ऑफ द गैल्वेनोमीटर. इसका फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज how we design galvanometer, the galvanometer will be so designed that current will be proportional to deflection. Construction of galvanometer आप एक बार रिवाइज कर लो. The formula is there. In that, the current is made proportional to the angular displacement of the pointer. How? By going for radial magnetic field. The concept is there. By applying radial magnetic field to the coil, then what we do, we'll make the current proportional to the deflection.
अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Two resistors of 100 ohm and 200 ohm are connected in series with a battery of 4 volt and negligible internal resistance. A voltmeter is to measure, which gives reading as 1 volt. The resistance of voltmeter will be. यहाँ पे हम सर्किट कंसिडर करेंगे। 4 वोल्ट यहाँ पे एक बैटरी है। फोर वोल्ट ए हुआ इसका रेजिस्टेंस R1 R2। इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम। वोल्टमीटर इज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम। यहाँ पे हम वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे हैं which gives reading of 1 volt. The reading of voltmeter must be which gives reading as 1 volt. The reading of the resistance of voltmeter by voltmeter का internal resistance कितना है? So we are connecting one voltmeter across this. Okay, fine. इसका रीडिंग कितना है 1 वोल्ट है। Then voltmeter का भी एक रेजिस्टेंस रहता है, that is called as the internal resistance of voltmeter. Then total circuit का resistance now पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर यहाँ पे 1 वोल्ट बोलते हैं, यहाँ पे कितना है 3 वोल्ट। जस्ट बेसिक सा, अगर आप फॉर्मूला लिख सकते हो पोटेंशियल डिवाइडर लिखो, यू कैन मैनेज विदाउट दैट पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला ऑल्सो। अगर टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट है, उसमें से 1 वोल्ट अक्रॉस R1, बाकी बचे तो कितना 3 वोल्ट तो अक्रॉस 200 ओम पे ड्रॉप होता है। देन वी विल डू वन थिंग, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, सो 1 वोल्ट है, सो व्हाट इज द ड्रॉप हियर 1 वोल्ट। यहाँ पे करंट कितना है, विल कैलकुलेट करंट, यहाँ पे I1, this will be I2. Then we know the drop and the resistance. We know the drop and the resistance, and we know this current. थोड़ा बुक्स में अलग दिया है, मैं थोड़ा बेसिक यूजिंग ओम्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई इज इक्वल टू 3/R2, 3/200, तो इसका हुआ 0.15 और 1.5 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर और 0.15 मिली एम्पियर। इसका I1 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज दिस I? I इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, थ्रू द सेल। यहाँ पे ड्रॉप कितना है 3 वोल्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना 200, सो विल गेट द करंट। देन I1 फाइंड आउट करेंगे। द I1 विल बी, I1 का वैल्यू, I1 का वैल्यू यहाँ पे तो 1 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 100, तो इसका हुआ 10 मिली एम्पियर। तो कितना करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है, करंट यहाँ पे तो 15 मिली एम्पियर यहाँ पे एंटर हो रहा है, 15 मिली एम्पियर। इसमें कितना करंट यहाँ पे जा रहा है 10 मिली एम्पियर, बाकी बचे तो 5 मिली एम्पियर तो यहाँ पे जा रहा है। नो, वी नो दिस ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट एंड करंट कितना पास है 5 मिली एम्पियर। यहाँ पे हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए वाला है तो ये तो वोल्ट मीटर है, सो नो 1 volt should be equal to 5 milliampere, 5 milli into voltmeter resistance. So this will be 10⁻³ 1000/5, 200 ohm। बिना पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं। सर पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला कैसे हम सो लेके यूज कर सकते हैं? 1 volt, applied EMF 4, then resistance of these two, R1 RV by R1 plus RV by R2 plus R1 RV,
आरवी। अगर फॉर्मूला आपको ये याद रहे तो ओके फाइन गुड, और एल्स जो मैं मेथड यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, सो यू हैव टू यूज दिस मेथड। So what is this potential divider formula? Hmm? The drop across this. Okay, यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस और दिस 100 ओम, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, हमें आरवी पता नहीं है, तो बट हमें यहाँ पे ड्रॉप पता है कितना है, 1 वोल्ट है। तो दिस 1 वोल्ट शुड बी इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ 4 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू, R1 RV बाय प्लस R2 प्लस दिस टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे सॉल्व करो आरवी, विल गेट आंसर। और एल्स वी आर यूजिंग द बेसिक ओम्स लॉ। हमें पता है यहाँ पे 4 वोल्ट अप्लाई कर चुके हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट ड्रॉप है, बाकी बचे सो 3 वोल्ट अक्रॉस R2। और यहाँ पे हमें 3 वोल्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और रेजिस्टेंस 200 है। इसका करंट कितना फ्लो हो रहा है, 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, एंट्री हो रहा है। इसमें से कितना, लाइक वी नो यहाँ पे ड्रॉप कितना है, 1 वोल्ट है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना, 100 ओम। यहाँ पे हम करंट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे करंट ब्रांच हो जाता है, तो थोड़ा करंट यहाँ पे डिवाइड होता है। सो 10 मिली एम्पियर यहाँ पे फ्लो होता है, बाकी बचे तो 5 मिली एम्पियर विल फ्लो। दिस डायग्राम, 15 मिली एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसमें से 10 मिली एम्पियर यहाँ पे, बाकी बचे तो 5 मिली एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, और दोनों यहाँ पे कंबाइन होके फिर कितना, सेम 15 मिली एम्पियर। तो हम यहाँ पे करंट फाइंड आउट करेंगे 5 मिली एम्पियर। आगे यहाँ पे हमें करंट पता है और वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप पता है, सो विल यूज ओम्स लॉ एंड विल गेट इट। सो वी आर मैनेजिंग जस्ट बाय ओम्स लॉ। दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। Two approaches, see, this is the Ohm's law, this is a potential divider method. Okay, fine. Now, next question is equivalent resistance of the following network across AB। यहाँ पे equivalent resistance find out करने हैं। यहाँ पे आप देख लो, एक वायर है। So what is the resistance of this 0 ohm parallel to 6 ohm will be 0। AB shorted, A short हो जाएगा। Then A 2 ohm 2 ohm, this will be parallel। मैं एक सर्क्यूट ड्रॉ कर देता हूँ। इसका रेजिस्टेंस 2 ohm, a 2 ohm, 2 ohm, this 3 ohm, और a 3 ohm है, और एक पॉइंट ए बी, 3 ohm 3 ohm, 2 ohm 2 ohm, और a 2 ohm। नो, दिस रेजिस्टेंस ये जो रेजिस्टेंस है 0 ohm 6 ohm, सो ये शॉर्ट हो जाके ये दोनों हम एक वायर के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। 0 ohm parallel to 6 ohm will be 0 ohm, so 0 ohm। so now a 2 ohm, यहाँ से हम करंट सेंड करेंगे, यहाँ पे हम करंट सेंड करेंगे। दिस विल बी आई, कितना हुआ, ए आई वन आई टू। नाउ ये डिवाइड होके आई थ्री और आई फोर, आई फोर करंट नाउ डिवाइड होके आई फाइव एंड आई सिक्स। ये दोनों कैसे नो, दिस टू आर पैरेलल, 2 ohm parallel to 2 ohm will be 1 ohm। तो अगला सर्क्यूट, नाउ दिस विल बी 1 ohm, पॉइंट एक ले लो, P1 P2, P1 P2 वी आर रिप्लेस विद द वाई। नेक्स्ट P3 P4 क्या होगा वो देख लेंगे हम। जैसे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे देन विल गेट सम आइडिया। नो यहाँ पे डायरेक्टली देख लो, नो दिस विल बी P3 P4 P5 P6, P1 P2 P3 P4। P1 P2, this is in series, this is in parallel। okay, these two are in parallel, तो इसका 2 ohm कितना होगा, नो विल बी 1 ohm। अगला सर्क्यूट होगा, नो P3
P4, this will be P5, P6, 3 ohm, 3 ohm. This will become 1 ohm. Three ohm and A and this is B. यहाँ पे check कर लो ना. This 3 ohm and this 1 ohm, they are in 2 ohm. ये जो 2 ohm है, this 2 ohm and 1 ohm, they are in series. That effect will come in parallel. दूसरा circuit. 3 ohm, P5, P6, 3 ohm. ये देख लो सब, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे? They are in parallel. Effective resistance 1/3, 1/3, 1/3 will be 1 ohm. चेक कर लेंगे. So this will be shorted 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 3 ohm. Effective resistance RAB equal to 1/3 plus 1/3 plus 1/3. ये हुआ कुल 1 ohm. थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है. This will be 1 ohm. Simple series parallel, very important. First, this will be shorted. We'll replace with a wire. Okay, fine. बाद में ये दो रेजिस्टर्स है ना, इसको हम 1 ओम से रिप्लेस कर रहे हैं. बाद में ये जो 2 ओम है, 2 ohm and this 1 ohm, they are in series. This will become 3 ohm. और उसके बाद में ये सब सीरीज पैरेलल में. So effective resistance will be 1 ohm. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. अगला क्वेश्चन अगेन मीटर ब्रिज का. The resistance per centimeter of meter bridge wire is R with X ohm resistance and balance length from left end is 40, 25 resistance right. Now the wire is replaced by another wire of 2R resistance per the new balancing length. मीटर ब्रिज ड्रॉ करने का जरूरत नहीं. So, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आई एम ड्रॉइंग दिस. और बिना डायग्राम फॉर्मूला से आप मैनेज कर सकते हैं. तो वो जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायग्राम डाल रहा हूँ. ये जो वायर है नो, resistance per centimeter of meter bridge wire is R with X ohm resistance in the left gap. यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है? X ohm. Balancing length with 25 ohm resistance in the right gap. बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे 40 सेंटीमीटर में हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है. तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले. तो बैलेंसिंग लेंथ x बाई 25 ये हुआ 40 बाई 100. 0 0 2 5 5 x इक्वल टू 10 ओम. अननोन रेजिस्टेंस जो लेफ्ट गैप में there will be 10 ohm. No, the wire is replaced by another wire of 2R resistance per centimeter. Sir, like आप ये 40 lambda इसका R का कैलकुलेशन में कहीं पे नहीं ले रहे. Okay, we'll do one thing. Lambda, okay, this one 40R. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है? R है. लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर. ये 40 सेंटीमीटर का वायर, उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 40R. बाद में रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कितना है? R है. ये वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट कितना है? R है. देन बाकी बचे 60 सेंटीमीटर. ये वाला 60 सेंटीमीटर का लेंथ, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ये 60 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा?
60R। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आर आर कैंसल हो जाएगा, 0 0, दिस विल बी 2, दिस विल बी 40R। थोड़ा कैंसल 60, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 25 2/3, 50/3। इसका रेजिस्टेंस हुआ 50/3। नो, now the wire is replaced by another wire of 2R। अब इसका बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहे हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका वैल्यू कितना था, पहले R था। नाउ दिस विल बिकम 2R। सो यहाँ पे हम x/25, यहाँ पे LR/100 - x का वैल्यू कितना है, 50/3 इंटू 25, 2R एंड ए वो 2R। इसका रेजिस्टेंस पर लेंथ कितना हुआ, L2R, और इसका कितना रेजिस्टेंस है, 100 - L2R। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। सो द बैलेंसिंग लेंथ एक्स का वैल्यू कितना, 50/3 इंटू 25, 2R कैंसल हो गया, 100 - L, और L का वैल्यू कितना, 40 सेंटीमीटर। ओके फाइन। तो ये थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसको हम इसका स्प्लिट करेंगे, 25 क्वेश्चंस को 12 और 13। तो अगले वीडियो में बाकी बचे 13 क्वेश्चंस मैं अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, प्लीज शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ग्रेट सपोर्ट। Remaining will write it up. Remaining questions of 2024 January shift in next video. Okay. Yeah, till then, bye. Take care. Good evening, बच्चों. We will continue the current LCT JMain 2024 PRQ. The January shift, part 2. The part 1 I discussed almost around 13 questions. In total, there are 27 other. The remaining 14 questions I'm going to explain now. So this will be current LCT again. What are the basics? Like you have to focus here: ammeter, voltmeter, galvanometer, then meter bridge, and Wheatstone network. Wheatstone network, or then simple series parallel, bulb series parallel, bulbs, ether coil, power dissipation. I think these are the basic idea. So first read all the theory, then formulas, then work out. It will be really very very easy for you. So next we'll start the questions. यहाँ पे हमें question, what is the, by what percentage will the illumination of lamp decrease? What do you mean by illumination? Illumination का formula क्या है? Nothing but power dissipation of brightness. ना, इसको illumination ही दूसरा नाम है brightness
और इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड। इसको इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस और पावर डिसिपेटेड बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड। So what is the basic formula for power dissipation? I square by R. अगर आप यहाँ पे आपको बल्ब, फिलामेंट बल्ब है, this R will be the resistance of filament, I is the current flowing। यहाँ से आपको ब्राइटनेस जो आता है, this is the illuminated power or electric power dissipated। There's a basic concept। If the current drops by 20%, current drops by 20% means बच्चे से कितना करंट हुआ? 0.8। पहले कितने करंट फ्लो हो रहा था? हाई। Then decreases drops by 20% means will become 0.I. So this will become 0.64 I square R new power। If the current drops by 20%, by what percent will the illumination of lamp decrease? The current drops by कितना पावर डिक्रीज हो रहा है? So P minus P dash ले लेंगे, I square R minus so this will become 36% हुआ। सिंपल मैथ्स, नथिंग टू डू विथ फिजिक्स। ये तो आपको पता ही होगा, पावर डिसिपेटेड इन द बल्ब और ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब और द इल्यूमिनेशन, देयर इज अ बेसिक फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको पावर रेटिंग कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पावर रेटिंग ऑफ ए बल्ब, द मैक्सिमम पावर विच इट कैन डिसिपेट इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर बाय आर। कुछ प्रॉब्लम्स है, रिवाइज कर लो। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर द बल्ब। और बल्ब सीरीज पैरेलल, और जो बल्ब सीरीज में पैरेलल, देन द पावर रेटिंग एंड द वोल्टेज रेटिंग। अगर आपको वोल्टेज रेटिंग पता है, पावर डिसिपेशन पता है, देन यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। पावर रेटिंग विल बी गिवन फॉर ए बल्ब। अगर आप शॉप में जाके खरीद लो बल्ब, 10 वैट, 20 वैट, 50 वैट, 100 बल्ब, दिस कॉल्ड एज पावर रेटिंग। एंड द मैक्सिमम वोल्टेज फॉर विच इट विल वर्क, 240 वोल्ट, 200 वोल्ट, 10 वोल्ट लिखे रहते हैं। ये दोनों डेटा रहता है हर हर बल्ब के लिए। ये दोनों के लेकिन डेटा से हम रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फाइंड आउट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस वी कैन प्रिडिक्ट हाउ मच ऑफ करंट फ्लोइंग। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। अभी थोड़ा कम करेंगे। नो, EMF of 2 volt and internal resistance of 2 by 3 ohm। यहाँ पे एक सेल है, देन 2 by 3 ohm रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 2 by 3 ohm। थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके नो, हाँ आप दिख रहे हैं ना। सो सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 by 3 ohm है। द पावर कंजम्पशन इन द सर्क्यूट। तो पहले हम एक काम करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इट विल ब्रांच होता है। एक करंट यहाँ पे फ्लो होता है, एक करंट यहाँ पे फ्लो होता है, और एक करंट यहाँ पे, और एक करंट यहाँ पे। फाइन, एक 2 ओम, 2 ओम, इसका 1 ओम हुआ, यहाँ पे 1 ओम हुआ। और ये दो 2 ओम दे आर इन पैरेलल। इसका इफेक्टिव कितना होगा? 1 ओम। और इसका इफेक्टिव कितना होगा? 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये दो सीरीज में। तो द टोटल विल बी, द सर्क्यूट विल बी लाइक दिस, 2 ओम। एग्जाम में सर्क्यूट ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये सर्क्यूट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे
ये दो ओम, दो ओम, टू ओम्स, टू ओम। ये दो तो पैरेलल है। इसका इफेक्टिव कितना है? 1 ओम। इसका इफेक्टिव कितना? 1 ओम। तो बाकी बचे से सर्किट विल बी नाउ 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम। हाँ, ये वो 2 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, 2 वोल्ट और 2/3। ये 1 ohm again, the series, everything will become parallel. 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 volt, 2/3। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2/3। और ये हुआ 2 वोल्ट। नो, लेट a current I flows. Applying Ohm's law, I equal 2/3 plus 2/3. ये हुआ 6/4, 3/2। कितना करंट हुआ? 3 एम्पियर। पावर डिसिपेशन इन द एक्सटर्नल सर्क्यूट, फॉर्मूला is equal to I square into 2/3, 3/2 whole square into 2/3. पावर डिसिपेशन इन द सर्क्यूट, ये जो हुआ, दिस द सर्क्यूट, इसको हम सर्क्यूट बोलते हैं। देन यहाँ पे एक वर्ड है, एंटायर सर्क्यूट। एंटायर सर्क्यूट मीन्स जो पावर डिसिपेट हो रहा है सर्क्यूट में और सेल में, दिस विल बिकम एंटायर सर्क्यूट। द पावर डिसिपेटेड इन एंटायर सर्क्यूट is equal to power dissipated in circuit plus power dissipated in cell, because cell is also a part of circuit. सेल को भी हम एक सर्किट का पार्ट मानते हैं। तो कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पे? यहाँ पे भी 2/3 ओम रेजिस्टेंस है। पावर डिसिपेटेड इन सर्किट कितना कैलकुलेट कर चुके हम? 3/2। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस सेल ऑल्सो द सेम थिंग, 3/2 is 3/2। कुल मिला के नाउ इट विल बिकम 3 watt। I think this is really what do you mean by entire circuit. I'll really expect that most of the teachers might have not given this idea. What do you mean by entire circuit? Little bit यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का like a word का like a power of the words is what you have to. What do you mean by entire circuit? इसको हम सर्किट बोलते हैं। entire circuit बोले तो this is everything, entire, complete, सब कुछ। Fine. This is taken as this is the cell, this part is cell, इसको हम सेल बोलते हैं। ये जो वाला है दिस इज द सर्क्यूट। एंटायर सर्क्यूट मींस आपको ये कंप्लीट, इसको हम एंटायर सर्क्यूट बोलते हैं। लिटिल बिट सम दिस वर्ड इज थोड़ा केयरफुल वे टू एनालाइज, नॉट वेल डिफाइंड वर्ड। यहाँ पे एंटायर बोलते हैं, बेस्ड ऑन लैंग्वेज वी हैव टू टेक डिसीजन। तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, बेस्ड ऑन लैंग्वेज। सर यहाँ पे एंटायर बोले तो जहां पे भी पावर सेल में सर्किट में डिसिपेट हो रहा है, इसको हम एंटायर बोलते हैं। 3 voltmeters all are having different internals are joined when some potential across AB। यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर चुके हैं हम।
ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वोल्टमीटर्स का डिफरेंट है, डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, इसका वोल्टेज के बारे में पूछ रहे हैं। देन साला के वोल्टमीटर के बारे में, अगर आपको वोल्टमीटर के बारे में कुछ भी पता नहीं रहे तो भी व्हाट इज द बेसिक आइडिया, जहां पे भी वोल्टमीटर है वहां पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो। फाइन, यहाँ पे हम एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं VAB। हम जो भी यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, इसका ड्रॉप यहाँ पे V1 है, इसका ड्रॉप V2 है, यहाँ इसका इसका ड्रॉप कितना V3 है। और दिस टू आर पैरेलल, ए ब्रांच और ए वाला ब्रांच पैरेलल है। दिस विल बी इक्वल टू V3 इक्वल टू V1 प्लस V2। और इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज द रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, करंट इज सेम। तो देयरफॉर V1 इक्वल टू यहाँ पे हम IR1 लिखते हैं और V2 इक्वल टू IR2। R1 नॉट इक्वल टू R2, डिफरेंट रेजिस्टेंस बोल चुके हैं, सो V1 नॉट इक्वल टू V2, ऑप्शन 1 इज रूल्ड आउट। और ये तो V1 प्लस V2 इक्वल V3, ये भी गलत हुआ। V1 प्लस V2 ग्रेटर देन V3, ये भी गलत हुआ, so ये एक ही सही है। अगर आपको वोल्टमीटर के बारे में कुछ भी उतना आइडिया नहीं रहे तो भी देन यू कैन मैनेज बेस्ड ऑन ओम्स लॉ सीरीज पैरेलल। जहां पे भी वोल्टमीटर है वहां पे रजिस्टर लगा दो और एनालाइज करो। हम्म? अगला क्वेश्चन ले लेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर वेरीज विद टाइम एज आई नॉट का वैल्यू बीटा वैल्यू दे चुके हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉस थ्रू ए सेक्शन ऑफ द वायर। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो इस 20 सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक हम कंडक्टर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे एक कंडक्टर, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वायर में, कितना चार्ज 20 सेकेंड्स में कितना चार्ज फ्लो हो चुका है। तो करंट का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो बेसिक डेफिनेशन हुआ करंट का। अब हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, I dt, एक का करंट का वैल्यू I0 प्लस बीटा टी डी टी, तो इंटीग्रेशन हमें वो चार्ज वैल्यू आ जाएगा हमें। तो कितना टाइम है, 20 सेकेंड टाइम है। सो 0 to Q, Q इक्वल टू I0 टी प्लस बीटा टी स्क्वायर बाई 2। सो चार्ज हुआ I0 टी बीटा टी स्क्वायर बाई 2। I0 का वैल्यू कितना है 20, टाइम टाइम लिमिट यहाँ पे 0 to 20, वो भी लिमिट रख देंगे 0 to 20। ये हुआ 20, बीटा का वैल्यू 3/2 टाइम 20 स्क्वायर, 400, 3 into 400/2, 400 प्लस 200, 1000 कूलम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस आप जरूर जरूर पढ़ चुके होंगे आप इंटीग्रेशन में, और ये तो डेफिनेशन है I = dq/dt। सी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार थ्योरी पढ़ लो, इट्स वेरी इजी। जितना आप अभी कितना एक कम से कम 15 दिन बाकी है, 20 दिन में, 20 दिन में एक एक दिन एक एक चैप्टर पढ़ लो, 20 क्वेश्चन यू कैन मैनेज। जस्ट ओनली फॉर्मुलास, तेरी फॉर्मुलास पढ़ लो बस, जितना है उतना, एक दिन में जितना होता है इतना। एक दिन में हर एक दिन एक एक चैप्टर नहीं होता है। ओके सर, लाइक तीनों सब्जेक्ट है, लाइक 4-4 घंटे ले लो, 4 घंटे में कितना 2-3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो तुम। 1 घंटे एक चैप्टर हो तो 4 चैप्टर बस, और 4 दिन रिपीट करो सभी। फिर दे शुड बी एफर्ट। अगर बिना मेहनत करे तुम एग्जाम जा रहे हो, नॉट पॉसिबल। जितना भी तुम ट्रिक्स टिप्स
वो ये कुछ भी करो, कुछ भी फायदा नहीं है। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें मार्क्स नहीं आएगा। देयर नो मैजिक फॉर्मूला। आई सजेस्ट यू लाइक, मेरा ये वीडियो है, ये भी देखना बंद कर दो, जाके सीधा अपना टीचर का नोट्स ओपन करो, जाके पढ़ो, रिवाइज करो, और एग्जाम, मेंस एग्जाम होने के बाद हम बात करेंगे। मेरा फोन नंबर सभी को पता है, यू कैन कॉल मी। इंस्पिरेशन वीडियोस, कॉन्फिडेंट बूस्टर, कुछ भी जरूरत नहीं। जो तुम पढ़ते हो वही कॉन्फिडेंस है। तुम जाके पढ़ो, दैट वॉज द कॉन्फिडेंस। कुछ वीडियो देखे, यू विल गेट कॉन्फिडेंस, कितना वो तुम खुश हो जाते हो, उससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है आपका। खुश होने में और कॉन्फिडेंस में बहुत सारा इट्स लॉट ऑफ डिफरेंसेस है। आई ऑल्सो, मैं भी बात करता हूँ उस पर, आप मैसेज होकर खुश हो जाते, जाके एग्जाम लिखो, कुछ भी मार्क्स नहीं आते। पढ़ने से आपको एग्जाम में मार्क्स आता है। कॉन्फिडेंस बूस्टर, जाके साइकाट्रिस्ट से मिलो, दे विल टॉक स्वीटली एवरीथिंग, साइकोलॉजिकली दे टेल यू ओके फाइन। तुम्हें क्या लगता है कि ओके नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, जाके एग्जाम लिखो, nothing will happen, again you get same marks. The reason for that, like, science is not all about like being confident, no, science is all about hard work. जब तक आप तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। देयर नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क, all these are 1%. Hmm? So stop watching all the videos, only read, 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 read. That's the one simplest thing. Hmm? At least you read some 20 chapters. In second attempt, again you can add few more chapters, like that, like that. Okay, fine. No, we have a target. No, first means, second means. We'll set right. The maximum you try your level best. Hmm? थोड़ा मैं लाइक सीधा आदमी हूँ, लाइक चुपके वो ये बात करके तुम्हें सपने दिखा के फिर एग्जाम में रुलाना, मेरा वो आदत नहीं है। सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तुम्हें एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। दिस इज वन फैक्ट, जो मेहनत करता है उसी को मिलता है मार्क्स। पहले मेहनत करो, देन बाद में इट विल कम अबाउट द टेक्निक्स, टिप्स, ट्रिक्स। अगर बिना फॉर्मूला, बिना कॉन्सेप्ट क्या करोगे तुम, वो टिप्स ट्रिक्स लेके वो ये करके, नो यूज। I will go to the next question. A galvanometer having coil resistance 10 ohm shows a full scale deflection for a current of 3 milliamp. For it to measure a current of, the value of shunt should be. So यहाँ पे हमें एक गैलोमीटर है, यहाँ पे एक रजिस्टर रख देंगे, शंट। 8 एम्पियर करंट यहाँ पे बेच रहे हैं हम। द वैल्यू ऑफ शंट शुड बी, इसका वैल्यू पूछ रहे, एंड इसका गैलोमीटर रेजिस्टेंस जी, गैलोमीटर करंट कितना है, 3 मिली एम्पियर, शोस ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। वेरी सिंपल है, अगर आपको ये सर्क्यूट याद रहे तो फिनिश हो, देयर नथिंग इज देयर इन द गैलोमीटर। इससे ज्यादा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है गैलोमीटर। जैसे करंट, जो आप करंट मेजर कर रहे हैं वो यहाँ पे एंटर हो रहा है, आई जी करंट विल फ्लो हियर, बाकी बचे सो कितना, 8 माइनस इसका आई आई सिंबल दे देंगे, सो आई माइनस आई जी ये यहाँ पे फ्लो हो जाता है। देन दिस टू आर पैरेलल, दिस resistance, this galvanometer and this shunt, they are parallel। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप दोनों सेम रहेगा। सो आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। आई जी का वैल्यू, सो हमें हमें तो एस वैल्यू फाइंड आउट करना है, आई जी इंटू जी। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद रहे तो फिनिश हो, यू कैन मैनेज दिस एग्जाम, दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इजीली। अगर तुम्हें दिस कन्वर्शन ऑफ गैलोमीटर टू अमीटर का वो एक डायग्राम मालूम है, विद दिस डायग्राम ऑल्सो आप ये इक्वेशन, सर ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं हम, पैरेलल पैरेलल,
लिफ्ट और पैरेलल, अगर वो भी पता नहीं तो डायरेक्टली रूप इक्वेशन, यहाँ से तुम भागो, सर्किट यहाँ से भागो तुम। तो जब आप भाग रहे हो, इस या टू, ऐसे आपको चलना है, क्लोज पाथ, जिस जगह आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे रिटर्न आके अटैच हो। तो अगर आप तुम ऐसे चल रहे हो, सो यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो लाइक ये जो सिंबल्स दे रहे हैं किस हिसाब से दे रहे हैं आप, ये तो पॉजिटिव हुआ, बिकॉज यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है, जहाँ पे करंट एंटर होता है वो एंड पॉजिटिव ले लेते हैं, और जहाँ पे एक करंट बाहर निकल रहा है रेजिस्टर से, उस एंड हम नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे गैलमीटर करंट इज एंटिंग, यहाँ से आप निकल रहा है, सो माइनस साइन। सो दिस विल बी आई जी, आई माइनस आई जी इंटू एस। ओके, ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो नो नो, केवीएल लूप इक्वेशन बता देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो आई माइनस आई जी इंटू एस, ड्रॉप ड्रॉप, यहाँ पे हम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, राइज इन ड्रॉप, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, फॉल इन ड्रॉप, माइनस ऑफ आई जी इंटू जी। यहाँ पे एस के लिए सॉल्व करो। अगर आपको पैरेलल आइडिया पता है, डायरेक्टली द ड्रॉप अक्रॉस गैलोमीटर इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस शंट, बिकॉज दैट पैरेलल। अगर सीरीज पैरेलल याद रहे तो टेक हेल्प ऑफ दैट। नो सर, थोड़ा केवीएल पता है मुझे, ओके, टेक हेल्प ऑफ केवीएल, सॉल्व फॉर इट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, विल गेट आंसर। यहाँ पे कैलकुलेशन, आई जी का वैल्यू 3 × 10⁻³ 10, 8 माइनस 3 × 10⁻³ सो यहाँ पे 10⁻³ है, इसको हम एक काम करेंगे, इसका 8 हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8000 इंटू 10⁻³ 38,000 - 3। सॉल्व करने के बाद विल गेट दिस आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। तो द डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल, the different moving coil can fall from 25 division to 5 division when a shunt of 24 ohm is applied. The resistance of galvanometer coil. तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? Deflection in moving coil galvanometer falls from 25 division to 5 division when a shunt of 24 ohm is applied. यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, इसका पहले 25 डिवीजन था, करंट कितना फ्लो हो रहा है से लेके आई, जब आप जब हम एक शंट कनेक्ट करेंगे, इसका डिफ्लेक्शन अब होगा 5। द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, इसका वैल्यू ऑफ जी हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थोड़ा लगे सर कौन सा फॉर्मूला, सो करंट पर डिवीजन एक आइडिया ले लेंगे, करंट पर डिवीजन, तो देखना लगे हाउ मच ऑफ करंट फ्लोस पर डिवीजन देखना, तो इसका वैल्यू लेट इट बी से सम के समथिंग ले लेंगे। सो देन ईयर इक्वल टू हाउ मच नाउ, 25 के। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है 5 के, और बाकी बचे सो कितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, आई माइनस आई डैश।
Okay, fine. So, sir, what is the K? Current per division. Current by number of divisions. हर गैलोमीटर का एक दिस विल बी कांस्टेंट. So now K का कितना current per division? Then we can write it here. Now I is equal to, यहाँ पे I dash लिखेंगे. मैंने शंट ऑफ 24 ओम, सो हमें ये रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है. तो यहाँ पे ये दो पैरेलल है. सो I dash इंटू G इज इक्वल टू 24 इंटू I माइनस I dash. I dash का वैल्यू कितना है 5K. 24. I का वैल्यू कितना है, I dash का वैल्यू कितना है 5K. So K will get eliminated. 5G 24 into 25 600. यहाँ पे 5 into 24 5 into 24 5 2 जा 10 10 10 120. So G का वैल्यू 600 minus 120 480 by 5 5 1 जा 5 9 जा 5 6 जा. हाँ, 96 ओम. ओके, ये थोड़ा बेसिक्स ऑफ गैलोमीटर. इसका थोड़ा कुछ भी नहीं लेके व्हाट ऑल द सर के बोले तो करेंट पर नंबर ऑफ डिविजन. इसको हम फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं. दिस एवरीथिंग इज कॉल्ड एज ए लाइक ए करेंट नंबर ऑफ डिविजन. हर गैलोमीटर का दिस विल बी कांस्टेंट. दिस विल बी कांस्टेंट. कौन सा भी शंट वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, दिस विल बी कांस्टेंट. दिस करंट पर नंबर ऑफ डिविजन विल बी कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. ये थोड़ा वेरी गुड क्वेश्चन है. बेसिक सीरीज पैरेलल के ऊपर है. इन द गिवन सर्क्यूट द करंट इन द रेजिस्टेंस R3 इज. ये थोड़ा सिंपल नहीं दिख रहा है. दिस इज R1, ये वो R2, ये वाला R3, ये वाला R4 है. कितना करंट यहाँ पे पास हो रहा है. तो यहाँ पे थोड़ा ये दो रेजिस्टर्स देख लो. ये दो पैरेलल है. जो भी यहाँ पे करंट यहाँ पास हो रहा है, सो इट विल ब्रांच. थोड़ा करंट यहाँ पे पास हो रहा है, थोड़ा करंट यहाँ पे, असल है कि आधा करंट यहाँ पे पास होता है, आधा करंट यहाँ पे पास होता है. सो दिस टू आर पैरेलल. इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ 2 ओम. सो नेक्स्ट सर्क्यूट ये 2 ओम, इसका दोनों का इफेक्टिव 2 ओम एंड ए वाला 1 ओम है. इसका 10 वोल्ट. तो टोटल करंट कितना हुआ यहाँ पे. करंट का वैल्यू I इक्वल टू 10 बाय 2 प्लस 2 प्लस 1 2 एम्पियर. 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. जो 2 एम्पियर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इट विल ब्रांच आउट. 2 एम्पियर यहाँ पे, 1 एम्पियर यहाँ पे, 1 एम्पियर यहाँ पे, और दोनों कंबाइन होके यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगा. 1 एम्पियर 1 एम्पियर. तो करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर. सीरीज पैरेलल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बड़े बड़े सर्क्यूट सो ट्राई टू अवॉइड. एक 15-20 रेजिस्टर देते, फाइंड आउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो वैसे प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं पूछते. ओके फाइन. मैक्सिमम 3 4 5 कैपेसिटर सीरीज पैरेलल.
in the given circuit, the current flowing through resistance 20 ohm is 0.3 ampere, while the ammeter is 0.9 ampere, the value of R1. इसका रेजिस्टेंस R1 पूछ रहे. So then circuit में यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है करंट? 0.3 एम्पियर. एमीटर का रीडिंग कितना है? यहाँ पे एमीटर का रीडिंग कितना है? 0.9 एम्पियर. और ये जो रेजिस्टेंस है ना 20 ओम, इसका करंट कितना है? 0.3. हम एक काम करेंगे, हमें ये पोटेंशियल ड्रॉप पता है. कितना पोटेंशियल ड्रॉप? V. अप्लाई ओम्स लॉ. V is equal to 0.3 into 20, 6 volt. Call V naught. हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता है. तो यहाँ पे कितना हो? 6 वोल्ट. तो यहाँ पे भी करंट, इसको I1 बोल दो, इसका करंट I2 बोल दो. यहाँ पे ये I3 पूछ रहे हैं हमें. नो I1 ऑल्सो. I1 का करंट कितना है? पोटेंशियल ड्रॉप B नॉट बाई 15, 6/15. टोटल कुल मिला के कितना? और दिस विल बिकम 3/5. 3/5 बोले तो दिस विल बी 0.6 एम्पियर. Six volt I naught equal to V naught by 15. V naught by 15 is a 2, no? 0.4. So 0.4 volts. अप्लाई KCL. यहाँ पे हम KCL अप्लाई करेंगे. I1 plus I2 plus I3 equal to 0.9. I1 will be 0.4, I2 0.3, I3 equal to 0.9. I3 का वैल्यू और 0.2 एम्पियर. इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? V नॉट इक्वल टू I3 इंटू R3. V नॉट का वैल्यू कितना हुआ? 6. I3 का वैल्यू कितना हुआ? 0.2. R3 वैल्यू और R1 पूछ रहे थे ना. ओके, सिंबल्स एक काम करता हूँ, इसको R3 कर देता हूँ. ये जो रेजिस्टेंस अननोन है, लेट इट बी R3. So R3 equal to 6 by 0.2, 60 by 2, 30 ohm. Simple series parallel KCL. ये तो KCL है. यहाँ पे KCL. बाद में ओम्स लॉ अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर. क्योंकि हमें यहाँ पे करंट पता है और इसका रेजिस्टेंस पता है, सो वोल्टेज ड्रॉप मिल जाता है. अगर वोल्टेज ड्रॉप, अगर रेजिस्टेंस पता है, तो हमें करंट पता चल जाता है. द बेसिक V इक्वल टू IR. देखो, एक क्वेश्चन ही समथिंग इज टेलिंग पोटेंशियल डिवाइडर. पोटेंशियल डिवाइडर सर्क्यूट. थोड़ा सीरीज पैरेलल का याद कर लो. द आउटपुट वोल्टेज V नॉट, इसका ड्रॉप कितना है? सो 4 वोल्ट. यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट विल पास थ्रू अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स. जितना भी करंट पास हो रहा है, सभी रेजिस्टर्स में वो सेम रहता है. देन बेस्ड ऑन दैट, नो, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये 3 रेजिस्टर्स है, इसका हम इफेक्टिव ले लेंगे और इसका हम इफेक्टिव ले लेंगे. ये सब तो सीरीज हुआ. इसके यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 4 वोल्ट. ये कितना हुआ? 3,500. और ये बाकी बचे से कितना? 100, 500. इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? ये 500. और ये हुआ 4 वोल्ट.
यहाँ के वोल्टेज इस वोल्टेज पूछ रहे हैं। अगर अभी अगर तुम्हें वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो देन टेक हेल्प ऑफ द केवीएल. अप्लाइंग केवीएल, plus 4 volt minus 3500 I minus 500 I equal to 0. I equal to 4 by 4000, 1 milliampere. V not equal to कितना, यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, I into 500, 1 into 10 to power of minus 3 into 5 into 10 to power of 2. तो इसका वैल्यू 0.5 वोल्ट, और ये तो 3500 हो, ये 500 हुआ, सो 0.5 वोल्ट इट विल ड्रॉप हियर. जो 4 वोल्ट अप्लाई करते हैं ना 0.5, ये थोड़ा की, सो 0.5 विल मेक इट. अगला क्वेश्चन. Electric toaster has resistance of 60 ohm at room temperature. The toaster is connected to 20 volt supply of current flowing. The temperature attained by toaster is around, if alpha equal to. इसका पावर कितना है? ओके, दिस वन. एक एक काम करेंगे. ये जो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम है. इसका अल्फा भी दे चुके हैं, 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4 पर डिग्री सेल्सियस. क्वोशंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट 27 डिग्रीज इसका रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम. ये जो अब इसको हम सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, तो इसका 220 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है 2.75 एम्पियर. अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? The temperature attained by toaster is around, if the current flowing through it reaches, now जब इसका करंट 2.75 होगा, विल कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. उसका रेजिस्टेंस के बारे में देन वी विल गेट द पर्टिकुलर फॉर्मूला. एक काम करेंगे हम, लगे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. R2 इज इक्वल टू 220, R इक्वल टू V by I 2.75. ये हुआ 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ 3 बाई 275. (22 by 775). इसका करीब करीब इट विल बी 80 ओम. नो, इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस अल्फा. इसका टेम्परेचर हमें पता नहीं, थीटा -27. Okay, this will become 4 by 3, 1 plus थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट इट कम 1694. ओके, लिटिल बिट सम डिफरेंट वे. यहाँ का अल्फा के बारे में पता है हमें, वो जो टेम्परेचर पूछ रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन अलग से दिया है यहाँ पे. सर लगे नाउ आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, लेके तो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? जब एक करंट फ्लो होता है अक्रॉस रेजिस्टर, सो हीट विल बी जनरेटेड.
वो जब हीट जनरेटेड होता है, सो दैट रेस्टर ओनली विल एब्जॉर्ब इट, और उसके वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम वोल्टेज और करंट के वैल्यू से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा पता है, उससे हम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक ओके, दिस इज अ बेसिक आइडिया। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द, यहाँ पे ईएमएफ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं नहीं दिए, सो आई ड्रॉ इट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस E1 इसका 8 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। E2 इसका 2 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, और ये जो करंट फ्लो रहा है, लेट इट बी आई। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2, VBC के बारे में पूछ रहे, सो दिस आई, so this will be I equal to 8 minus 2 by 2 plus 4, 1 ampere. Then VB minus 2 minus 4I, यहाँ से लूप इक्वेशन लिख रहा हूं। अगर अगर साला के ए इक्वेशन आप एक कहां से लिख रहे हैं, सो विल राइट लूप इक्वेशन प्लस सी माइनस, ओके, प्लस 8 वोल्ट, प्लस 8 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट माइनस 4I माइनस 2I equal to 0. I equal to 6 by 6, 1 ampere. Okay, this will be VC minus 2 minus 4I minus VB 0. VCB is equal to 2 plus 4I, 6 volt. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं इसको। इवन आपको जस्ट एक, व्हाट इज द डिफरेंस साला के यहाँ पे टर्मिनल ईएमएफ ऑफ सेल 2, इसका ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। ओके फाइन। सो यहाँ पे कौन चार्जिंग हो रहा है, दिस इज चार्जिंग, दिस इज डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग बोले तो सप्लाइंग एनर्जी, चार्जिंग बोले तो इट इज स्टोरिंग एनर्जी। सेल्स के बारे में थोड़ा सिंपल आइडियाज आपको पता रहना है। When a potential difference V is applied across the wire of resistance, it dissipates energy at a rate W. The wire is cut into two halves, and these halves are contained mutually parallel, same supply. The same supply, the energy dissipation rate will become. यहाँ पे हमें एक वायर है, ओके फाइन, इसको हम अक्रॉस सेल कनेक्ट कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी है, यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रहा है। इसको हम दो पार्ट, दो हिस्से में बांट देंगे, और ये दोनों हिस्सों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। दिस द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप हिंदी मीडियम रहे तो ओके, क्वेश्चन विद इन हिंदी फाइन। अगर आप इंग्लिश मीडियम है, देन रियली ट्राई टू फोकस मोर ऑन इंग्लिश, बिकॉज आपको वहां पे हिंदी में कोई पढ़ने वाला कोई भी नहीं रहेगा। यू हैव टू रीड, उसको समझना चाहिए, फिर देन ओके फाइन। इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, R/2, R/2, R/2 पैरेलल टू R/2। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, 1/R' इक्वल टू 1/R2, 1/R2, 1/R2 इक्वल टू 2/R, 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 4/R। तो R' का वैल्यू कितना हुआ, R/4। सो यहाँ पे
r/4 और इसका वैल्यू आई डैश इक्वल टू v/r/4. ओके, हम करंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका हुआ 4i. पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है? P डैश इक्वल टू आई डैश बाई r/4. आई डैश का वैल्यू आई डैश स्क्वायर 4i² r/4. 16i² r/4. 4i². यहाँ पे कितना पावर डिस्पेट हो रहा है? i²r. So this will become 4p. p डैश का वैल्यू कितना है? 4p. Okay, this completes your JEE 2024 January shift current density. Still 1 month time is there. Still you can prepare very well. You can revise all the formulas. So once again, यहाँ पे कौन सा important topics है? Ammeter, voltmeter, Visto network, meter bridge, galvanometer, series parallel, power dissipation. इसी में और thermal quotient of resistance. Small ideas. 1 hour अगर आपको कुछ भी नया है तो साला के यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, बैठ के 1 घंटे में रिवाइज कर सकते तुम ये सब. वंस आपको थोड़ा ये फॉर्मूलास याद रहे तो देन अपने आप प्रॉब्लम्स कर सकते तुम. ओके फाइन, तो प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग थिंग्स. ओके बच्चों. हाँ, so like next video I'll upload the April shift of the current density. Till then, okay, bye. Thank you for great support. Please like, share, and subscribe our channel. Thanks for great support. Okay, bye.